Hello guys, very good morning. Now today we are going to discuss about a very good article taken from the Hindu newspaper. Uh, the title of this particular article is The Procedure for Removing Judges. The procedure for removing judges, either High Courts or Supreme Court. So in this particular article, we are going to know about that what are the procedures to remove a judge. All right. So this particular articles comes after a communal remark spoken by a sitting sitting High Court, sitting judge of Allahabad High Court. So let's read and try to learn the facts of the process of the procedure for the removing judges. All right. So 55 MPs of Rajya Sabha have submitted a motion for removing Allahabad High Court Judge Justice Shekhar Kumar Yadav to chairman of Rajya Sabha. ठीक है. And what is the procedure for removal? Now we are going to know the procedure actually. What is the procedure of the removal? All right. So Article 124 and 217 of the Constitution provides that a judge of Supreme Court or High Court shall be removed by the President on the grounds of proved misbehavior or incapacity after a motion is passed in each Houses of Parliament by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting in the same session. ठीक है. तो ये जो पर्टिकुलर जो आर्टिकल का पैराग्राफ है ये हमें बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं. ऑलराइट. कौन से आर्टिकल्स वो हमें अथॉरिटीज वो पावर्स देते हैं. सो दैट आर्टिकल्स आर 124 एंड 217. These are basically two articles which provides the capacity, which provides the authority to remove a judge, and the judge can be removed by the president. All right. On the grounds of proved misbehavior. मतलब अगर कोई misbehavior और incapacity दिखती है पार्लियामेंट को तो it can be removed. He or she can be removed. All right. So the key role in the removal of a High Court or Supreme Court judge is the majority of the total membership in the parliament and parliament in the both houses, lower house and upper house. All right. So the constitution does not define the terms proved misbehavior or incapacity. अब ये बहुत ही मुझे मतलब बहुत रोचक बात लगती है द हिंदू न्यूज़पेपर की. ये इसके इसमें जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसकी जो लिखने की जो शैली है, जो स्टाइल है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है. अब इसमें आपको क्वेश्चन पहले ये लोग खुद ही करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद इसका आंसर भी देंगे. सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा गया है ये एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर के द्वारा लिखा गया है जिनका नाम है रंगराजन आर, और इनकी एक पॉलिटी की बुक भी आती है पॉलिटी सिंप्लीफाइड. ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे. ऑलराइट. तो इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है आर्टिकल और इसको समझना भी उतना ही इंटरेस्टिंग बन जाता है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओपाइंड इन वेरियस केसेस दैट विलफुल मिसकंडक्ट इन ऑफिस. अब जो ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि भाई मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी ये डिफाइन नहीं है कि किस ग्राउंड्स पे या किन ग्राउंड्स को किन बेसिस पे मिसबिहेवियर उसको समझा जाएगा. लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट्स होते हैं, जैसे ऐसा है कि जो चीज़ें अभी लॉज नहीं बनी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको पार्लियामेंट ने अभी लॉ नहीं बनाया है या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, तो उन पर जो
उनको जो रेगुलेट करने का काम होता है उसको सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के द्वारा किया जाता है। जो फॉर्मर केसेस में या वेरियस केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है उन्हीं के ग्राउंड्स पे उनको रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ opened in various cases that willful misconduct in office, corruption, lack of integrity, or any other offense involving moral turpitude would constitute misbehavior। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे केसेस में, वर्डिक्ट्स में, है ना, ओपिनियन दिया है कि अगर विलफुल मिसकंडक्ट किसी ऑफिस में होता है, विलफुल इट मीन्स दैट कि डेलिबरेटली एनी मिसकंडक्ट, मतलब विलफुल मिसकंडक्ट का मतलब होता है कि कोई जानबूझ के कोई मिसकंडक्ट होता है मतलब किया जाता है। एंड करप्शन एंड लैक ऑफ इंटीग्रिटी और एनी अदर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। मोरल टर्पिट्यूड का बेसिकली मतलब होता है कि जो मोरालिटी को ठेस पहुंचाती है, मतलब समथिंग लाइक कि जो हाँ, तो मोरालिटी टर्पिट्यूड्स या मोरल टर्पिट्यूड से बेसिकली मतलब होता है कि मोरल डिके होता है जहाँ पे पीपल का, आई मीन पीपल में मोरल करप्शन जहाँ पे फैलता है तो उसको कहते हैं कि मोरल टर्पिट्यूड वहाँ पे हो रहा है। तो अगर ऐसी चीज़ें, मोरल टर्पिट्यूड वुड कंस्टिट्यूट मिसबिहेवियर, इन सब ग्राउंड्स पे जब मिसबिहेवियर, मतलब ये चीज़ें जब होती हैं तो उसको मिसबिहेवियर की कैटेगरी में रखा जाता है। एंड इनकैपेसिटी हियर मीन्स अ मेडिकल कंडीशन दैट में इंक्लूड फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि अगर कोई जज है वो जस्टिस को या फिर जजमेंट्स को देने में एबल नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू गिव जजमेंट्स, है ना, तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस में भी उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी किया है कि इनकैपेसिटी हियर मीन्स अ मेडिकल कंडीशन, कोई ऐसे मेडिकल कंडीशन हो दैट जिससे कि में इंक्लूड फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, जिसमें फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी दोनों इंक्लूड हो सकती है। ऑलराइट, द डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर रिमूवल इज प्रोवाइडेड इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। एंड इसका जो डिटेल्ड जो प्रोसीजर है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में डिटेल्ड मेंशन है, प्रोवाइड किया गया है। It stipulates that a notice of motion for removal should be signed by not less than 50 members in the Rajya Sabha and 100 members in the Lok Sabha. All right, and कह रहा है कि इसका जो मोशन, बेसिकली जो मोशन वर्ड होता है, मोशन का मतलब होता है हिंदी में याचिका से, मोशन का इंग्लिश में एप्लीकेशन से भी आशय होता है, किसी चीज़ के एप्लीकेशन देना, है ना। तो नोटिस ऑफ अ मोशन फॉर रिमूवल शुड बी साइंड बाय नॉट लेस दैन 50 मेंबर्स, और किसी जज को रिमूव करने के लिए जो मोशन पे जो एप्लीकेशन होता है एटलीस्ट 50 मेंबर्स से कम नहीं होने चाहिए उसमें साइन। ठीक है, और 50 मेंबर्स से ज़्यादा और किसमें, राज्यसभा में, और 100 मेंबर्स से कम लोकसभा में नहीं होने चाहिए। द चेयरमैन और स्पीकर में आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन एंड कंसल्टेशन एडमिट और रिफ्यूज टू एडमिट द मोशन। कह रहा है कि जो चेयरमैन होते हैं इसके राज्यसभा के और लोकसभा के, ठीक है, तो वो इसको ड्यू कर सकते हैं कंसिडरेशन में, ठीक है, रख सकते हैं अपने कंसिडरेशन में, एंड कंसल्टेशन एडमिट, और इस पे कंसल्टेशन पे भी रख सकते हैं इसको, और रिफ्यूज टू एडमिट द मोशन, और इसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं एडमिट करने से, है ना। एंड इफ एडमिटेड, अच्छा अगर एडमिट कर लिया जाता है, a 3-member committee will be constituted consisting of Supreme Court or High Court judges and a distinguished jurist। कह रहा है कि अगर इसको एडमिट कर लिया जाता है, मान लीजिए कि चेयरमैन ने इसको ले लिया, मतलब एडमिट कर लिया, तो अब इस पे इंक्वायरी के लिए, इनके ऊपर इनकी मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी को वेरीफाई करने के लिए बेसिकली 3 मेंबर्स की कमिटी फॉर्म की जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का मतलब होता है कि जो
टॉप मोस्ट के लॉयर या जज होते हैं, रिस्पेक्टेड लॉयर या जज, ऑलराइट, जिनको कानून की बहुत अच्छी समझ होती है, तो इनको रखा जाता है उस मेंबर्स में। एंड इफ द कमिटी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन absolve the judges of any misbehavior or incapacity, the motion pending shall not be proceeded with। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर in that scenario if committee after investigation absolve the judges, अगर कमिटी इन्वेस्टिगेशन के बाद जजेस को मतलब फ्री कर देती है, सारे जो ब्लेम्स लगाए गए थे जो भी उनके ऊपर है ना, अगर उनसे उनको फ्री कर देती है, तो जो मोशन है, जो पेंडिंग मोशन है, शैल नॉट बी प्रोसीडेड, तो फिर पेंडिंग मोशन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, उसको प्रोसीड आगे नहीं किया जा सकता है। इफ़ फाउंड गिल्टी, अगर गिल्टी उनको पाया जाता है ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी में, सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी से पीड़ित हैं, अगर मिसबिहेवियर से गिल्टी पाए जाते हैं, द कमिटी रिपोर्ट विल बी टेकन अप इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो फिर कमिटी की रिपोर्ट को पार्लियामेंट के हाउस में लिया जाता है, विच कुड बी देन नीड टू पास द मोशन विद स्पेशल मेजोरिटी, एंड देन आफ्टर इसको एक स्पेशल मेजोरिटी मिलनी चाहिए पास करने के लिए। ठीक है, अगर स्पेशल मेजोरिटी नहीं मिलती है तो अगेन वो पास नहीं हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ द करंट इशू, अब हमें इस पे देखना कि भाई करंट इशू इस पे क्या है। ठीक है, सो जस्टिस यादव मेड communally charged remarks while speaking at an event organized by the विश्व हिंदू परिषद। एक्चुअली मैटर यही है, जो एक्चुअल में मैटर है जिस पे हम लोग अभी बात कर रहे थे, द दिस इज द एक्चुअल मैटर, कि जो जस्टिस यादव जिनका नाम शेखर कुमार यादव जी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, सिटिंग जज हैं, तो उन्होंने एक कम्युनल रिमार्क दिया है। कम्युनल चार्ज रिमार्क ऐसा बताया जाता है कि उनके ऊपर लगा हुआ है, और क्यों लगा हुआ, क्योंकि इन्होंने कुछ कुछ कम्युनल रिमार्क्स दिए थे। एक ऑर्गेनाइज मतलब वो था, इवेंट था कोई, जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें, and he is reported to have said the country would be run according to the wishes of the majority। और ऐसा ऐसा मतलब रिपोर्ट किया गया, ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने कहा कि कंट्री वुड बी रन अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द मेजोरिटी, जो कंट्री है वो मेजोरिटी से चलती है। सपोज दैट कि जैसे अब इंडिया में हिंदू की मेजोरिटी है, तो कंट्री इज रनिंग विद द मेजोरिटी of the people, that is Hindus, all right। So the reinstatement of values of judicial life adopted by the Supreme Court in 1997 and followed by the all high courts mandates that behavior and conduct of members of the higher judiciary must reaffirm people's faith in the impartiality of the judiciary। अब ये कह रहा है कि दी री री इंस्टेटमेंट का बेसिकली मतलब होता है री अपॉइंटमेंट या रिन्यूएबल या री इस्टेब्लिशमेंट, ऑलराइट। तो री इंस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ जुडिशियल लाइफ की वैल्यूज़ को मेंटेन मतलब फिर से उसको रिपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1997 में जो अडॉप्ट किया गया था एक अपना उनका मतलब एक लॉ समझ सकते हैं, या फिर एक कंसेप्ट अडॉप्ट किया गया था, कि कंसेप्ट ही यही था कि री इनस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। ठीक है, एंड फॉलोड बाय, और यही चीज़ फॉलो किया जाता है ऑल हाई कोर्ट्स के द्वारा, जो मैंडेट करता है कि बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ मेंबर्स, जो इनके मेंबर्स का बिहेवियर और कंडक्ट है ऑफ द हायर जुडिशरी में मस्ट रीअफर्म पीपल्स फेथ मस्ट रीअफर्म पीपल्स फेथ इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशरी। मतलब बेसिकली इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो पीपल का फेथ है जुडिशियल की इम्पार्शियलिटी पे, उसको मेंटेन रखना होता है। ठीक है, उस पर लोगों का विश्वास टूटने ना पाए। ठीक है, ये चीज़ मेंटेन करके चलना पड़ता है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द जजेस शुड नॉट कमिट एनी एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन दैट इज अनबिकमिंग ऑफ द हाई ऑफिस द ऑक्यूपाई। अब कह रहा है कि जो जजेस हैं उनको कभी भी ऐसा कोई एक्ट नहीं कमिट करना चाहिए जिससे जो अनबिकमिंग ऑफ द हाई ऑफिस है, मतलब जो हाई ऑफिस के लिए जो अनुचित काम है, जो विच इज़ नॉट सुटेबल
जो उनकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचाए, ऐसे कोई काम उनको कमिट नहीं करना चाहिए जिसको वो लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हाई ऑफिस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ऐसा कोई उनको काम नहीं करना चाहिए कि उस ऑफिस को ठेस पहुंचे, मतलब उस इंस्टीट्यूशन को बेसिकली कोई नुकसान हो या उसकी रेपुटेशन को कोई खतरा पहुंचे। नोटेबली, दो द जजेस इंक्वायरी बिल 2006 was not passed by the parliament, it defined misbehavior to include violation of code of conduct for the judges। फिर आगे कह रहा है कि जो ध्यान देने योग्य बात है, पेइंग अटेंशन on the above line, on the next lines, कि दो द जजेस इंक्वायरी बिल 2006, एक जजेस इंक्वायरी बिल 2006 में आई थी, 6 में आई थी, 2006 में, जो पास नहीं हुआ था पार्लियामेंट में। उसने ये चीज़ डिफाइन किया था, इट डिफाइंड मिसबिहेवियर, उसने मिसबिहेवियर को डिफाइन किया था, जिसमें इंक्लूड था वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द जजेस। तो उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि भाई किन ग्राउंड्स पे किन कोड ऑफ कंडक्ट्स को वायलेट करने पे उसको मिसबिहेवियर की कैटेगरी में रखा जाएगा। दिस बिल proposed imposition of minor measures like issuing warnings, public or private censure, withdrawal of judicial work for a limited time, etc. for misconduct that does not warrant removal। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों को उसमें मेंशन किया गया था, बट इट वाज नॉट पास्ड। सो आगे कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है जब वो पास नहीं हो पाया था। तो फिर आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, क्या अब रिक्वायर्ड है भाई, रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है। द ब्लैक स्टोन्स रेशियो इन क्रिमिनल jurisprudence that it is better than 10 guilty persons escape than that one innocent suffer। जो ब्लैक स्टोन रेशियो है इन क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का बेसिकली मतलब होता है कि जो साइंस ऑफ लॉ होती है, या नॉलेज, द स्टडी एंड नॉलेज एंड द साइंस ऑफ लॉ, मतलब लॉ का जो कानून की जो साइंस होती है वो ये कहती है कि इट इज़ बेटर देन 10 गिल्टी पर्सनस स्कैप। मतलब ये सही होता है कि 10 गिल्टी लोगों को छोड़ दिया जाए, बट दैट वन इनोसेंट सफ़र, लेकिन उस लेकिन जो है एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब किसी एक बेगुनाह को सज़ा ना मिले, उससे अच्छा है कि 10 जो है मुजरिमों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये ब्लैक स्टोन रेशियो का अपना एक प्रिंसिपल है, मतलब जो चलता है स्टडी में, जुरिस्प्रूडेंस में। ठीक है, सो कैन बी अप्लाइड इवन व्हेन इट कम्स टू द रिमूवल ऑफ जजेस। और यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है जजेस के रिमूवल पे, कि भाई ऐसा ऐसा मतलब ये बेटर होगा कि कुछ लोगों को 10 लोगों को सज़ा मिल जाए, मतलब सॉरी 10 लोगों को छोड़ दिया जाए जो गुनाहगार हैं, लेकिन किसी एक अच्छे जज को ना रिमूव किया जाए गलती से, अगर इनोसेंट हो वो तो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। द stringent process with the requirement of special majority in both houses has resulted in the non-removal of judges even after having been found guilty of misbehavior by the inquiry committee। कह रहे कि जो stringent प्रोसेस है, stringent प्रोसेस का बेसिकली मतलब होता है कि स्ट्रिक्ट प्रोसेस। ठीक है, विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, जो स्पेशल मेजोरिटी का जो स्ट्रिक्ट प्रोसेस है इन बोथ हाउसेज, दोनों हाउसेज में, हैज़ रिजल्टेड इन द नॉन रिमूवल ऑफ जजेस इवन आफ्टर हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर बाय द इंक्वायरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी के द्वारा अगर उनको अगर क्या नाम है गिल्टी भी फाउंड कर दिया जाता है, तो भी उनके रिमूवल का जो प्रोसेस है वो स्ट्रिक्ट हो जाता है ड्यू टू स्पेशल मेजोरिटी इन द बोथ हाउसेस। ऑलराइट, so this is this is nevertheless essential to protect the independence of judges while discharging their duties। कह रहा है कि इट इज़ नेवरथलेस इसेंशियल। नेवरथलेस का बेसिकली मतलब होता है कि जैसे हम लोग स्टील का यूज़ करते हैं, दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट मीनिंग ऑफ द स्टील। So this is nevertheless essential to protect the independence of judiciary
This is nevertheless essential to protect the independence of judges while discharging their duties. The chairman of the Raj Sabha, against whom himself a notice of motion for removal has been submitted, it is likely to admit the present motion. The Supreme Court has issued a notice seeking details of the controversial speech made by Justice Yadav. The judge is likely to appear before the Supreme Court Collegium to explain his stand, and it is cardinal that judges display behavior that behalves the high constitutional office they hold. ठीक है, अब कह रहा है कि जो दिस इज नेवरथलेस एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस। अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई जो इनका जजेस का जो इंडिपेंडेंस है उसको प्रोटेक्ट किया जाए वाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते समय उनकी जो इंटरडिपेंडेंस है उसको भी इंडिपेंडेंस है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के जो चेयरमैन है अगेंस्ट होम हिमसेल्फ नोटिस ऑफ मोशन रिमूवल हैज़ बीन सबमिटेड। हाँ, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब इसको इसी में मेंशन किया गया है, समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनके उनके अगेंस्ट में भी एक रिमूवल का एक नोटिस है ना, मोशन किया नोटिस के लिए मोशन किया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन डाला गया है एंड इज़ अनलाइकली टू एडमिट द प्रेजेंट मोशन। अब बहुत ही कम संभावना है कि ये प्रेजेंट मोशन को एडमिट करें क्योंकि उनके अंदर अथॉरिटी उनके पास अथॉरिटी होती है मोशन को रिफ्यूज़ करने की। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इशूड अ नोटिस सीकिंग डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल जो स्पीच है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस दिया है और उसकी डिटेल्स को मांगा है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से। ठीक है, द जज इज़ लाइकली टू अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कलेजियम, और लगभग से ऐसा माना जा रहा है कि जो जज हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव जी, उनको वो लगभग पॉसिबिलिटी तो यही है कि अपीयर होंगे बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कलेजियम। ठीक है, और अपना वहाँ पे स्टैंड एक्सप्लेन करेंगे एंड इट इज़ कार्डिनल दैट जजेस डिस्प्ले बिहेवियर दैट बिहेव्स द हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस दे होल्ड। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को होल्ड करते हैं उसके हिसाब से उसके ग्राउंड्स पे अपना स्टैंड वो लोग भी लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।